سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھو ایئرٹیل 5G پلس اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر دیا زور۔ بنیادی ڈھانچے سے متعلق 5ویں بین الاقوامی کانفرنس کو دیا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معیشتوں کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار۔ قدرتی آفات کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے جموں کشمیر کے ہر ضلع میں جدید ترین سہولیات سے لیس ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم کرنے کا انتظامیہ کا فیصلہ۔ اس سال 1,40,000 بھارتی عازمین اکرام حج بیت اللہ کے لیے منتخب، زائد از 4,000 خواتین بغیر محرم کے کریں گی حج ادا۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں بھارتیہ فضائیہ کا ایک اہلکار جاں بحق۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر زور دیا ہے۔ قدرتی آفات کا سامنا کرنے کی صلاحیت والے بنیادی ڈھانچے سے متعلق 5ویں بین الاقوامی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ قریبی رابطوں والی دنیا میں قدرتی آفات کا اثر صرف مقامی نہیں ہو سکتا، لہذا اس سلسلے میں اقدامات مربوط نوعیت کے ہونے چاہیے۔ مودی نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو جدید طرز پر ڈھالتے وقت اس طرح کی جانکاری کو پوری احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور مقامی جانکاری کے ساتھ جدید طرز کی ٹیکنالوجی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ایک بڑا وسیلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بہتر طور پر یکجا کی گئیں تو مقامی معلومات عالمی سطح پر کافی کارآمد بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معیشتوں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن رہی ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے ہر ضلع میں انتہائی جدید ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خطے میں قدرتی آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ اس پروجیکٹ میں آفات کے بندوبست سے متعلق قومی منصوبہ 2019 کے تحت آفات سے نمٹے جانے سے متعلق ایک مکمل منصوبہ شامل ہوگا اور اسے سبھی 20 ضلعوں میں نافذ کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے ہنگامی طور پر کارروائی کیے جانے سے متعلق نظام کے لیے NDMAK کے ساتھ مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ وقفہ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکر، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ خبروں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ اس سال بھارت سے 1,40,000 عازمین کرام حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیں گے۔ حج 2023 کے لیے دی گئی 1,84,000 درخواستوں کی آن لائن قرعہ اندازی انجام دی گئی ہے، جس کی روح سے 1,40,000 درخواستوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سبھی منتخبہ عازمین کرام کے علاوہ ویٹنگ لسٹ کے درخواست دہندگان کو SMS کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب قرعہ اندازی کے فوراً بعد منتخبہ عازمین اور ویٹ لسٹ درخواستوں کو متعلقہ ویب سائٹ پر دستیاب کرایا گیا۔ غور طلب ہے کہ اس سال 4,314 خواتین بغیر محرم کے ہی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گی۔ یہ اب تک کا بغیر محرم کے خواتین کا سب سے بڑا قافلہ ہوگا۔ اقلیتی امور کی وزارت زیارت حرمین شریف کو آسان بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ حج 2023 کی پالیسی کے مطابق عازمین کرام کو اس سال سعودی ریالوں کا انتظام اپنی ضرورت کے مطابق خود کرنا ہوگا۔
इस सिलसिले में सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ इश्तराक किया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि मौसम साजगार रहने की सूरत में इस बार ईद उल फित्र की नमाज श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में अदा की जाएगी। आज ईदगाह में नमाज ईद के लिए किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि ईदगाह शहर श्रीनगर का चेहरा है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में माहौल साजगार हो रहा है, जहां लोग अमन, तरक्की और खुशहाली के ख्वाह हैं। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा कुछ दीगर ओहदेदार भी थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जो जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चीफ पैट्रन भी हैं, ने आज सांबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दौरा किया और वहां पर अदालती कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने के अलावा हो रहे कामकाज का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कोर्ट में लीगल एड डिफेंस काउंसिल का इफ्तिताह किया और 2 अफराद में तैनाती के ऑर्डर तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के अहाते में कई पौधे लगाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मिशन डायरेक्टरेट जल जीवन मिशन J&K ने डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन बांडीपुरा और जिला इंतजामिया के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में एक रोजा मेगा हैंड होल्डिंग कम जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में पानी समिति अरकान, सरपंच, दीही तरक्की महकमे के अमले और दीगर मुतल्लिका महकमों के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताई तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने की। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और जिले के हर फर्द को साफ शफाफ पानी फराहम करने के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात को उजागर किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत में मरकजी सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा ने जम्मू एंड कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी की पहली सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर जाकीगा के CEO अभिषेक शर्मा, डायरेक्टर नाइलेट शमीम खान और IT डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर खत्ते में डिजिटल गवर्नेंस के फरोग के लिए UT इंतजामिया की सराहना की है। इस मौके पर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत हासिल करने वाले अफसरों से भी बात की। रामबन जिले में आज ट्रैफिक हादसे का शिकार होने के नतीजे में भारतीय फजाया के एक एहलकार की मौत वाक़या हुई। यह हादसा जिले के मरूग इलाके में उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर एक I-10 कार को हादसा पेश आया और ये एक गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार सरफराज अहमद भट्ट नामी IAF एहलकार की मौके पर ही मौत वाक़या हुई। G20 की मुनासिबत से नेहरू युवा केंद्र पुलवामा की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में आज यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम मुनअक्किद हुआ, जिसमें नौजवानों की शमूलियत पर खास तवज्जो मरकूज थी। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हुदा गलजाई ने खुतबा इस्तकबालिया में G20 की मुनासिबत से नौजवानों की शमूलियत की अहमियत उजागर की। इस मौके पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन सईद बारी अंद्राबी मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने G20 सदारत के दौरान अहदाफ के हसूल के लिए एक होकर काम करने की जरूरत उजागर की। प्रोग्राम में तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। कश्मीरी जुबान अदब के मारूफ उस्ताद और तरक्की पसंद शायर अब्दुल अहद आज़ाद की 75वीं बरसी के मौके पर आज कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज बडगाम की तरफ से बडगाम के एक स्कूल में नामवर शायर अब्दुर्रहमान सिकंदर की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की इब्तदाई निशस्त में अब्दुल अहद आज़ाद की सवानिया हयात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर लकी स्टार स्कूल बडगाम को तालीम के मैदान में नुमायां खिदमत अंजाम देने के सिले में 2023 के अब्दुल अहद आज़ाद अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान एक और अदबी तंजीम गुलशन कल्चरल फोरम की तरफ से भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में तहरीक साज अदीब अब्दुल अहद आज़ाद के यौम विसाल के मौके पर एक तकरीब मुनअक्किद हुई। तंजीम के सदर सईद बशीर कौसर की सदारत में मुनअक्किदा इस प्रोग्राम में कई अदब नवाजों ने अब्दुल अहद आज़ाद के अदबी कारनामों के मुख्तलिफ गोशों पर मुकाले पेश किए। मरहूम शायर को खराज अकीदत अदा करने के लिए एक मखसूस मुशायरे का भी एहतमाम था।
जम्मू कश्मीर विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अनंतनाग की जानिब से आज गवर्नमेंट विमेन्स कॉलेज अनंतनाग में पोषण पखवाड़ा के चलते पोषण सरगर्मियों से मुतअल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद में नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ताउन किया था। 2023 के पोषण पखवाड़े का मौजू है सभी के लिए ग़िज़ा खुशहाल भारत की ओर। इस प्रोग्राम का मकसद सही ग़िज़ा और खान पान के बेहतरीन आदात अपनाने के बारे में जानकारी फैलाने की ज़रूरत उजागर करना है। जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज से रुक रुक के बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अगरचे आज दिन में श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में कभी आसमान पर बादल छाए रहे तो कभी धूप निकली, ताहम महकमे मौसमियात ने 6 अप्रैल तक यूटी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई कर रखी है। वादी के कुछ ऊपरी इलाकों से ताज़ा बर्फबारी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरवट और कोंगडोरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी से सयाहों को लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया। कई सैलानी बर्फ पर रक्स करते हुए दिखाई दिए। बर्फीले मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे सैलानियों ने मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफें की। बांडीपुरा जिले की वादी गुरेज से भी ताज़ा बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में गुरेज बांडीपुरा रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि राजदान टॉप और इसके आसपास वाले इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी से सड़क पर फिसलन पैदा हुई है। गुरेज में 4 से 5 इंच तक ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। अलबत्ता बीआरओ और बीकन के एहलकारों ने मौसम में बेहतरी के साथ ही बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया है। उधर राजदान टॉप से बर्फीले तूफान में फंसी कम से कम 53 गाड़ियों को बाहिफाजत बचा लिया गया है। ये गाड़ियां कल शाम बांडीपुरा से रवाना हो गई थीं, ताहम रात के दौरान बर्फीले तूफान की जद में आ गईं। इसके बाद जिला इंतजामिया, पुलिस और बीआरओ के एहलकार जरूरी आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो गए थे। एहलकारों ने पहले मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला, जिसके बाद गाड़ियों को भी किसी नुकसान के बगैर बचा लिया गया। इस दौरान श्रीनगर कारगिल रोड को भी सोनमर्ग के मकाम पर बंद करना पड़ा है, क्योंकि जोजिला के इलाके में 2 मकामात पर बर्फानी तूदे गिर आए हैं। ये बर्फीले तूदे पनी माथा और काय पथरी इलाकों में गिर आई हैं। हुकाम ने कहा है कि सरहदी सड़क तंजीम के एहलकार सड़क को ट्रैफिक के लिए क्लियर करने की खातिर मसरूफ अमल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जुबानों में तालीम दिए जाने पर जोर दिया है। वो दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 36वीं तकसीमी असनाद के जलसे में इजहार ख्याल कर रही थी। सदर जमहूरिया ने कहा कि साइंस की आलमी दर्जे की जानकारी और मालूमात भारतीय जुबानों के जरिए भी हासिल की जा सकती है। मौसूफा ने तालीम समेत कई शोबों में ख्वातीन की पेशरफ्त की तारीफ की। सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुल्क 2035 तक 50% दाखिले से मुतअल्लिक मजमूई अंदराज का हदफ हासिल करना चाहता है और इग्नो इस मकसद को हासिल करने में खातिर ख्वाह ताउन कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद भारत को इल्म और जानकारी का आलमी सुपर पावर बनाना है। आज मुल्क भर में महावीर जयंती मनाई जा रही है। ये जैन बरादरी के सबसे अहम मजहबी त्योहारों में से एक है। इसे महावीर जन्म कल्याणक भी कहा जाता है। इस दिन भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, जो मौजूदा अवसर पाने के आखिरी और 26वीं तीरथ अंकारा थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने महावीर जयंती के मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की है। रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी महावीर जयंती के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बिजली फीस के बाद अब पानी के फीस में भी इजाफा अवाम के लिए बाइस परेशानी है। आज श्रीनगर में मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद से बात करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इस तरह के कई सारे इक़दाम से तशवीश पैदा हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत किसी भी जाविये से अवाम दोस्त नहीं है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।